Hello everyone, this is Pariti Nagda. In today's video, we are going to complete the second part of the King's Choice of 7th Standard SSC Board. In the previous video, I have told you or we had read that the lion was a king and he was quite a greedy type. उसको ऐसा था कि जो मिल रहा है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता था, उसको और चाहिए होता था. That's why one day he thought that he should have a court. For that reason, he appointed three advisors, or you can say like three courtiers. Out of that, Fox he appointed as an advisor. Then he thought that Leopard can be a good bodyguard, so he appointed him as a bodyguard, and he told Vulture to be his messenger. Now one day Vulture he asked to the lion that have you ever tasted camel's meat? So lion was like he was not knowing, or he had never tasted camel's meat, so he told that how it looks like, how it tastes like. So he told that, Your Majesty, there is a lion not too far, but it is in desert. So we can go over there and we can enjoy that meat. So he liked that idea. For that, the next morning, four of them started their journey in hunt of the camel. But after reaching to the edge of the desert during afternoon, what happened? It was quite sunny day, and that's why the paws of lion started burning. So lion got quite angry and he told that I don't care to eat lion that camel's meat, let's go back. Then Fox thought of a plan. He went in search of the camel, and he found also. After finding the camel, he told that our master, that is our king, he wants you to be there. He had killed your master and he wants you to live with him. He will take care of you, he will protect you from everything, he will give you shelter. So the camel also liked that idea, and he went along with the fox towards a camp of lion where the lion was staying. After reaching over there, lion was also pleased and everyone was quite surprised to see camel. Then they started their journey by sitting on camel's back. First lion sat on his back, then fox and leopard also sat on his back, and they returned towards the jungle, the forest, and the vulture was flying. He was being a guide, just he was moving ahead. Now let us see what happens after that. When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. आफ्टर रीचिंग टू द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट पहुँचे उस टाइम वो काफ़ी थक गए थे और उनको भूख भी बहुत थी, वो भूखे थे. द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर लुक्ड एट द कैमल. और फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, इन तीनों ने कैमल की तरफ देखा. देन दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड हंग्री स्माइल्स. फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे रहता है ना कि हाँ खाना सामने ही है अब तो खाना ही है, तो वैसी जो स्माइल होती है वैसे उन्होंने स्माइल दी एक दूसरे को. दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर. वो कैमल को लेकर ही इसलिए आए थे ताकि वो उनका खाना हो सके, तो वो किंग के डिनर के लिए लेकर आए. नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट. और अब वो टाइम आ गया था जब वो आराम से खाना खाने वाले थे, अपना मील लेने वाले थे. द लायन किंग न्यू वॉट हिज कोर्टियर्स वर थिंकिंग. और जो लायन था, जो किंग था, उसको पता था कि उसके जो कोर्टियर्स है वो क्या सोच रहे हैं. ही कॉल्ड द कैमल टू हिम. उसने कैमल को अपने पास बुलाया और कहा, फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ. यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक. आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन. बट लायन ने क्या कहा, मेरी फ्रेंड कैमल, मैं तुम्हें बहुत ग्रेटफुल हूँ तुम्हारी तरफ से, और तुम्हें थैंक कहता हूँ कि तुमने मेरी लाइफ सेव करी. मैं थैंकफुल हूँ तुम्हारे लिए. और यू आर वेलकम, आपका स्वागत है. तुम जितना टाइम चाहो, जितनी देर चाहो, जितने दिन चाहो यहाँ पर रुको, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा. द लायंस कोर्टियर्स वर शॉक्ड. लायन की जो कोर्टियर्स थे वो एकदम शॉक हो गए. Had they not risked their lives so that they could try camel meat?
क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो अपनी लाइफ थी, अपनी जो जान थी, वो इसलिए रिस्क नहीं की थी कि वो कैमल का मीट खा सकें? एंड द किंग वॉन्टेड टू लेट द कैमल लिव, और किंग चाहता है कि कैमल जिए, आराम से रहे। देन द कोर्टियर्स वर नॉट प्लीज्ड विद हिज डिसीजंस, और कोर्टियर उसके डिसीजन से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। येट दे कुड डू नथिंग, पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। नाउ द लॉयंस पॉज वर सो बैडली बर्न्ड दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग, और उसके पैर, उसके जो पंजे थे वो इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि वो हंटिंग इन द सेंस शिकार करने भी नहीं जा सकता था। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड, लेकिन इस चीज़ से उसकी भूख तो शांत नहीं हो सकती थी, भूख तो उसको भी थी। फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड, उसने शाउट किया और बोला, इन तीनों को बुलाया, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। उसने कहा कि तुम्हें दिखता नहीं कि मैं बीमार हूँ, मेरे पैर जो पंजे हैं वो जल चुके हैं और मुझे भूख भी है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने का लेकर आओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग, और कोर्टियर्स को ओबे करना ही था किंग को, कोई चॉइस भी नहीं थी उनके पास। सो आउट दे वेंट, तो वो बाहर गए। बट दे डिड नॉट गो फार, लेकिन वो ज़्यादा दूर भी नहीं गए। दे सेट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस्ड व्हाट दे कुड डू, एक सुरक्षित प्लेस पर वो बैठे और उन्होंने डिस्कस किया कि अब क्या करना चाहिए। आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। उसने, फॉक्स ने कहा कि मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैमल को इस तरह से डील करना चाहिए, इस तरह से उसको एक ट्रैप में फंसाना चाहिए कि वो खुद को खाने के लिए बोले। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, उसने बाकी जो दोनों थे उनको अपने प्लान को बताया। दे ऑल एग्रीड, सो बैक दे वेंट टू द किंग, और उन्होंने एग्री कर लिया, वो मान गए और इसलिए वो किंग के पास वापस गए। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड, योर मैजेस्टी, ही सेड, bowing low, we have found no food, but we cannot let your majesty suffer. I'm a poor creature, eat me. सबसे पहले वॉल्चर आगे बढ़ा और उसने बोला कि योर मैजेस्टी, खाना तो हमको मिला नहीं, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप भूखे रहो, आप सफ़र करो, और मैं जो एक पुअर क्रीचर हूँ आप मुझे खा लो। देन द फॉक्स पुश्ड द वल्चर असाइड, फॉक्स ने वल्चर को साइड में धक्का दिया। आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड, ईट मी योर मैजेस्टी। उसने कहा कि मेरे पास ज़्यादा मीट है, मेरी बॉडी ज़्यादा है, बड़ी है, इससे तो मेरे में ज़्यादा मीट है, तो मुझे खा लो। नाउ द लेपर्ड रश्ड फॉरवर्ड, अब लेपर्ड आगे बढ़ा। आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग। उसने कहा कि मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ टेस्ट में, लेकिन एटलीस्ट किंग का मैं पेट भर सकता हूँ। द कैमल लिसन्ड टू ऑल दीज ऑफर्स, कैमल ने सुन रहा था वो कि क्या हो रहा है। ही मस्ट डू एज मच, ही थॉट, उसको लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, ये लोग इतना कर रहे हैं तो। योर मैजेस्टी, ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू, प्लीज ईट मी इंस्टेड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स who will be more useful than I am. और कैमल जो उनके जाल में फंस चुका था, उसने कहा कि योर मैजेस्टी, मैं खुद चाहता हूँ कि आप मुझे खा लो, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ आपके लिए सेक्रीफाइस कर दूँ, और आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं, मुझसे भी ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो उनकी जगह आप मुझे खा लो। दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर, और यही वो टाइम था जिसके लिए ये तीनों वेट कर रहे थे। दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल, वो रेडी हुई थे, बट द लायन स्टॉप देम, लेकिन लायन ने उनको स्टॉप किया। यू ऑल आर गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, ही सेड, उसने बोला कि तुम सभी बहुत ही अच्छे हो और लॉयल हो। My heart is touched by your offers. I accept them all. I shall eat you in order in which you offered yourselves. और उसने बोला कि मेरा जो दिल है वो तुम्हारे ऑफ़र से एकदम खुश हो चुका है, टच हो चुका है, टची एकदम सेंटिमेंटल हो चुका हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हारे जो ऑफ़र्स हैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। और जिस तरह से तुमने ऑर्डर मेंटेन किया है, ऑर्डर मीन्स आप कह सकते हैं जो 1 by 1 आपने मुझे बोला है कि पहले वल्चर है, फिर फॉक्स है, फिर लेपर्ड है, तो मैं उसी ऑर्डर में तुम लोगों को खा देता हूँ।
द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक्ड. वो लोग तो शॉक हो गए क्योंकि उनका प्लान तो ये था कि कैमल को फंसा के सब लोग खाते, बट लायन ने तो उल्टा ही कर दिया. अवे फ्लू द वल्चर, दूर भागा वल्चर. अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, और दूर भागे फॉक्स और लेपर्ड भी. दैट मीन्स वो सब वहाँ से भाग गए. दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और वापस से वो कभी फॉरेस्ट में नहीं नजर आए. द लायन लाफ टू सी देम गो, और लायन हंसने लगा. देन ही टर्न्ड टू द कैमल एंड सेड, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव. और लायन समझ गया था कि कैमल जो था वो ऑनेस्ट था, उसकी कोई प्लान नहीं था उसका, वो तो लिटरली अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था. तो उसने, लायन ने कहा कि मैंने देखा है तुम एक लॉयल और गुड पर्सन हो, मीन्स पर्सन इन द सेंस क्रिएचर हो. यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव. दैट मीन्स तुम मेरे फ्रेंड रहोगे जब तक हम जिंदा हैं. द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल. कैमल खुश था और उसके प्रति बहुत ही थैंकफुल था. द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, लायन ने खुद से सोचा, टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर. उसने सोचा कि अच्छा होना मीन्स एक किंग हो हैं हम, अच्छी बात है, बट अगर हम काइंड हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है. दिस इज़ अ स्टोरी टेकन फ्रॉम folk tales retold, written by Shankar, and the message is to be king is good but to be kind is better. That means अगर आप राजा हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अच्छे राजा बनना चाहते हैं तो आपको काइंड होना ज़रूरी है. आई होप द स्टोरी इज़ clear to you. If you have any doubt, feel free to question me. Okay then, take care, stay safe.